Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to take here a new topic, and that topic is related to Joule's law of heating. In fact, dear students, I will throw light on heating effects of current, and then after that, dear students, I will also throw light on electric power and electric energy. Dear students, it is very easy, but you have to keep concentration here. Then and after then the things will seem to be as very easy, dear students. Okay, very nice. Let us start our topic. That is, I will start here actually Joule's law of heating, but dear students, before that I will here write heating effect of current. Heating effect of current, dear students. Okay, very nice. See, dear students, what is heating effect of current? See, dear students, when we pass electric current through a conductor having some resistance, then heat is produced in that conductor which is having some resistance. That effect of current is known as heating effect of current. Okay, students. So मैं ऐसे यहाँ बेटा बनाऊंगा. Let us, this is a conductor of length L. It is having some resistance. And when we pass current through it, that is this end is connected to the positive of the battery, and dear students, this end is connected to the negative of the battery. That is, when we pass current through a conductor having some resistance or in a given time t, then heat is produced in this conductor. That effect is known as heating effect of current. So what is heating effect of current? Heating effect of current beta ये है कि when we pass current through a conductor having some resistance, then dear students, heat is produced in that conductor. That effect of current is known as, dear students, heating effect of current. Heat is produced in that conductor, and that effect of current is known as heating effect of current. That effect of current is known as dear students, is known as heating effect of current. Okay, very nice. तो बेटे क्या लिखा मैंने यहाँ? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? When we pass current through a conductor having some resistance, then heat is produced in that conductor. That effect of current is known as heating effect of current. Okay, very nice. See, dear students, तो मैंने क्या लिखा? When we pass current through a conductor having some resistance in a time t, then इसमें बेटे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? Heat. Then heat is produced in it. और ये इफेक्ट करंट का क्या रह जाता है? इसको क्या कहते हैं? That effect of current is known as heating effect of current. Okay, very nice. Now, how much heat is produced in that conductor? That was calculated mathematically by a physicist, by a scientist in the form of a law known as Joule's law of heating. Okay, very nice. So, dear students, how much heat is produced in that conductor? That was given by the heat produced in a conductor was the heat produced in a conductor. The heat produced in the conductor was mathematically. In the conductor was calculated mathematically, or the magnitude of heat produced in the conductor was calculated or found mathematically by a physicist whose name is James Joule. See, dear students, mathematically by a physicist, उसका नाम है बेटा James Joule. In the form of a law known as Joule's law of heating. बेटा बात आई समझ में? लिख लो एक बात. The heat produced in the conductor was calculated mathematically by a physicist
whose name is James Joule in the Parliament law, and that law is known as Joule's law of heating or James Joule's law of heating. लेकिन सिंपली हम कहते हैं कि Joule's law of heating, लेकिन एक्चुअली नाम क्या है साइंटिस्ट का James Joule. See dear students, now what about this law? इसका लॉ क्या कह रहा है? According to this law बेटा इसके लॉ के मुताबिक according to this law dear students, see that heat produced in the conductor, that heat produced depends upon, किस पर डिपेंड करती है बेटा? depends upon किस पर डिपेंड करती है बेटा? The first thing that heat produced in the conductor depends upon the resistance of the conductor. ये किसने? according to this law that heat is directly proportional to the resistance of the conductor. I square पहले बेटा I square लिखेंगे square of the current. पहली बात क्या है? According to James Joule, the heat produced in the conductor having some resistance is directly proportional to the square of the current. More the current passes through it, more is the heat produced. But it varies according to the square of the current. Okay, very nice. First thing. और बेटा second thing क्या है यहाँ? That heat produced is directly proportional to R. Second thing. More the resistance of the conductor, dear students, more is the heat produced. It varies linearly, that is one power, but it varies scarcely here. Okay, very nice. तो तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर, third factor, dear students. This is second factor here, dear students. Okay, very nice. और third factor क्या है? That heat is directly proportional to time. That is time for which the current is flowing through this conductor having some resistance. More for the time current is flowing this, more will be the heat. Less for the time the current is flowing this, less will be the heat. So more the time consumed by the current to throw this, more will be the heat produced. So it depends also upon time. जितना टाइम ज्यादा हो जाएगा ना यहाँ करंट को इसमें पास होने में, इतनी ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस हो जाएगी. That is the third point. So combining these three parameters, these three equations rather, combining फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बेटा जब इसको कंबाइन करेंगे तो हीट किसके बराबर आएगी? हीट इज प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी. लेकिन बेटा इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? सी डियर स्टूडेंट्स, तो H किसके बराबर आएगा? H इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट के आई स्क्वायर आर टी. लेकिन K का वैल्यू देखा गया है एक्सपेरिमेंटली 1 है. द वैल्यू ऑफ K इज 1, तो H एंड K इज आल्सो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है. Therefore H किसके बराबर आएगा? I square RT, and here it is in joules में है आधी इक्वेशन. Here I calculate heat in joules, and that law is known as James Joule's law of heating. ये बेटा इस लॉ को क्या कहते हैं? Joule's law of heating. Joule's law of heating. तो ये स्टेटमेंट था किसके लिए बेटा? दिस इज द स्टेटमेंट फॉर जेम्स जूल्स लॉ, दैट इज हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज इक्वल टू आई स्क्वायर और टी. नाउ आई विल डिराइव दिस आल्सो. आई कैन आल्सो फाउंड दिस, आई कैन आल्सो कैलकुलेट दिस लाइक दिस. ओके, वेरी नाइस. सी डियर, कैसे इसको डिराइव करेंगे? एक और तरीके से यहां निकालेंगे इसको. सी डियर, हम इसको ऐसे भी डिराइव भी कर सकते हैं. ऐसे देखो बेटा कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे भी इसको, इस इक्वेशन को देखो कैसे. सी डियर, तो यहां क्या है बेटा? यहां पहले फिर ड्यूरेशन लिखे. H किसके बराबर है बेटा? आई स्क्वायर आर टी, लेकिन यहां जूल्स में है. अगर इसको हम कैलोरीज में, यूजुअली हीट होती है कैलोरीज में, अगर इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा यहां लिखना 1 कैलोरी होती है. 1 कैलोरी थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता है कि 1 कैलोरी होती है 4.18 जूल्स. ओके, वेरी नाइस. तो बेटा 1 जूल किसके बराबर? 1 जूल आएगा बराबर, यहां ये डिवाइड होगा. 1 कैलोरी होगी किसके बराबर बेटा? 1 जूल ये जो है ना, ये जरा है, ये यहां डिवाइड हो जाएगा. तो 1/4.18 यहां कैलोरी. ओके, तो यहां क्या लिखेंगे हीट बेटा? यहां अगर कर आई स्क्वायर आर टी, तो जूल के बदले क्या लिखेंगे? जूल के बदले 1 जूल लिखो, या जूल के बदले लिखेंगे 1 बाय, तो यहां ये डिवाइड हो जाएगा 4.18, लेकिन ये किस में आ जाएगी? कैलोरी. Okay, very nice. That is also James Joule's law, but this is in terms of heat, in terms of calorie. But here is heat is in terms of joules. Okay, very nice. You have to divide 4.18, then joule will get converted into calorie. Very nice. Now derivation इसकी आप derivation करेंगे और उसके बाद electric power और electric energy पढ़ेंगे. देखो बेटा कैसे. See dear. Okay, very nice. Now what is the cause for?
डेरिवेशन करेंगे इसकी, करेंगे, लेकिन कॉज क्या है, कॉज भी बताएंगे। व्हाट इज द कॉज फॉर हीटिंग? ओके वेरी नाइस, बताएंगे पहले कॉज, फिर डिराइव करेंगे कॉज, फिर डिराइव करेंगे किसको, जोल्स लॉ को। कॉज क्या हीटिंग का, व्हाट इज कॉज फॉर दिस हीटिंग? तो कॉज फॉर हीटिंग इज दिस, लाइक सी डियर स्टूडेंट्स, ये है कंडक्टर बेटा, यहां मैंने इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया और यहां किसके साथ, नेगेटिव के साथ। कॉज, व्हाई हीट इज प्रोड्यूसर in the conductor, but having some resistance. Keep this in mind. Heat is produced. How heat is produced? देखो बेटा, when one end of conductor is connected to the positive and second is connected to the negative, तो करंट यहाँ पास होगी इसमें। This is having some resistance. Resistance का होना जरूरी है यहाँ heat produce के लिए। Okay, very nice. When I am passing current through it for time t, this is having some resistance R. So इसमें heat कैसे produce होती है? See dear students. When this end is connected to the positive and this is connected to the negative, here electric field is set up in this. We know that electric field is set up inside the conductor, due to which electrons get accelerated. Electrons get accelerated towards the positive of the battery. But once electrons get accelerated, okay, आपको बात आ रही है समझ में? Electrons can get accelerated, they suffer collisions. Due to these collisions, when, see dear students, when here we apply positive potential, here is positive potential, here is better negative potential, there is potential difference between the ends of the conductor. So electrons will move towards the positive of the battery. When electrons move towards the positive of the battery, they will get accelerated. Okay बेटा, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा देखो क्या है, जब वो रश करते हैं ना बेटा, that means electrons are moving from negative to positive, but we can say that positive charge moves from positive to negative. Conventional current. The flow of positive charge is nothing but it is here the direction of conventional current, or it is conventional current simply. तो जब यहाँ charge जाते हैं, it goes from high potential to low, but electrons go from low to high potential. Positive charge will go from high potential to low potential. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ओके, जब ये जाते हैं, देख दिस, क्योंकि हम मानते हैं ना करंट का फ्लो मानते हैं, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, so these go from high to low potential. Okay, there is loss of potential energy. This loss of potential energy, because positive charges go from high potential to low potential. Due to this, there is loss of potential energy. This loss of potential energy means electrons are actually rushing in opposite direction. Because when these they suffer frequent collisions, because they do not bear kinetic energy. In fact, they get accelerated. This potential energy gets converted into the potential energy, that is potential energy difference gets converted here. The decrease in potential energy from this to this due to these positive charges gets converted into kinetic energy. But see dear students, this kinetic energy gets lost because they suffer collisions here, electrons. We can say positive charges suffer collisions. In other words, once they suffer collisions, they transfer their kinetic energies to the atoms and ions. With the result, these atoms and ions tremendously vibrate here and there, and this is the cause for heating. And thus when they move here and there randomly, tremendously, and that causes heat, that produces heat here. Okay, what happens here actually? This chemical energy of the cell gets converted into electrical potential energy. This decrease in the potential energy of positive charges when they go from A to B appears in the form of kinetic energy because they rush, but this kinetic energy does not, this is lost due to the frequent suffer of collisions. They suffer frequent collisions, they transfer their kinetic energies to the atoms. These atoms move vibrantly here and there. Thus it means that they transfer their kinetic energy. This appears then here in the form of heat energy, and that is here cause for the heat. Okay, very nice, very nice. So simply यहाँ लिखेंगे chemical energy किसमें change होती है? Chemical energy gets converted into potential energy, electrical potential energy. फिर बेटे decrease in potential energy क्या देगी? Decrease in potential energy from कहाँ से कहाँ तक? From A to B. लेकिन कौन सी चार्ज मैंने मान ली? पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, लेकिन मैंने पॉजिटिव चार्ज मान ली एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ बेटा। So this decrease in potential energy appears in the form of kinetic energy of electrons or positive charges here. In other words, if we can assume this,
तो क्या होता है, दे सफर हियर, दिस kinetic energy of electrons is because they do, electrons do not move freely, they collide, they transfer this kinetic energy to the atoms of the conductor. With the result, atoms of the conductor vibrate here and there. When they vibrate here and there, and thus heat is produced. क्या होगी produced बेटा? Heat is produced. Okay, very nice. Very nice. This is the cause for heat. Now see here. Now I am going to derive here. I am going to derive here Ohm's this Joule's law. Dear student, see here. बहुत आसान है क्वेश्चन. See here. Okay, very nice. तो अब डेरिवेशन किसकी करेंगे? डेरिवेशन ऑफ बेटा Joule's law. देखो बेटा क्या डेरिवेशन ऑफ Joule's law. सी डियर स्टूडेंट्स, तो यहां ऐसे लिखेंगे यही कंडक्टर, और ऐसे इसको पॉजिटिव के साथ बेटा, और इसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे? नेगेटिव के साथ. तो बेटा मान लीजिए कि यहां बेटा देखो ये इसकी हैविंग सम, दिस कंडक्टर इज हैविंग सम रेजिस्टेंस का होना बहुत ही जरूरी है, तभी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी. अदरवाइज हीट प्रोड्यूस हो जाएगी बट वेरी मिनिमम अमाउंट में. सो रेजिस्टेंस, मोर द रेजिस्टेंस मोर इज द हीट प्रोड्यूस. ओके, वेरी नाइस. सी डियर स्टूडेंट्स, this is plus and here is positive potential heat. When charges move from, that is when electrons go from this to this, but we can say that positive charges move from this to this, they could go from higher potential to lower potential. Okay, very nice. The work done by the battery, the work done, ऐसे लिखेंगे, the work done by the battery in taking Q charge from कहां से कहां तक? From point A to point B, from point A to point B. The work done by the battery in taking charge Q from point A to point B. वो वर्क डन किसके बराबर आएगी? वर्क डन, that is Q into potential difference between this and this, that is VB minus VA. बेटा यहाँ एक्चुअली VA minus VB है. VA क्योंकि हाई पोटेंशियल, VB वो किसके बराबर है? V, that is decrease in potential and decrease in potential energy भी कहेंगे. तो वर्क W is equal to किसके बराबर है? तो वर्क डन by this battery in taking Q charge from A to B, वो किसके बराबर आएगी? That is, we know that potential difference is equal to work done by charge. तो वर्क किसके बराबर आएगी? Q, how much charge is taken by the battery from A to B into potential difference between these, that is VB minus VA is nothing, that is potential difference between the two into V. आई बात समझ में? वेरी नाइस. ओके, वेरी नाइस. इसकी लिखो फर्स्ट इक्वेशन. But we know that Q here is IT. क्यों? Because बेटा यहाँ I is equal to Q by T, therefore बताइए क्या है? Q किसके बराबर आएगा बेटा? Q is equal to IT. तो बेटा क्या लिखा मैंने? Q के बाद यहाँ IT, और V किसके बराबर है? फ्रॉम ओम्स लॉ, ये IR के बराबर होता है. किसके बराबर होता है? IR. Where I is the current, where I is the, देखो बेटा क्या है, ये A पॉइंट है यहाँ VA, ये B पॉइंट है यहाँ VB, और इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस वो V है. लेकिन इसकी रेजिस्टेंस क्या है? R. और करंट क्या पास हो रही है ना, यहाँ करंट पास हो रही है इसमें. फॉर टाइम, कितने टाइम के लिए? T के लिए. तो देखो बेटा क्या है, Q is equal to IT and V is equal to IR, where I is the current flowing through this conductor and for time T and R is the resistance of the conductor. तो क्या किसके बराबर बेटा? यहाँ Q नहीं है बेटा, एक्चुअली ये W है. यहाँ लिखेंगे ऐसे बेटा, देखो क्या लिखेंगे. बट ये Q किसके बराबर है? ये Q किसके बराबर है? IT. क्लियर फ्रॉम दिस. आल्सो इसकी लिखो सेकंड इक्वेशन. आल्सो वी नो, बट बेटा यहाँ आल्सो हमको ये भी पता है. क्या पता है बेटा? आल्सो V is equal to IR. इसकी लिखो थर्ड इक्वेशन. आई बात समझ में? पहली इक्वेशन W is equal to Q into V, that is definition of potential difference में आता है. तो बट Q is equal to Q किसके बराबर है? IT. ये यहाँ बट Q किसके बराबर है? IT, चार्ज करंट इनटू टाइम, एंड V किसके बराबर है? I dot, that is Ohm's law. तो बेटा सबस्टिट्यूट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट. सबस्टिट्यूट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट. करो सबस्टिट्यूट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट. सबस्टिट्यूट सेकंड एंड थर्ड इन बेटा किस में? फर्स्ट. तो देयरफॉर वर्क किसके बराबर आएगी? वर्क कम्स आउट टू बी एज हियर Q के बदले यहाँ IT लिखो, इनटू बेटा B के बदले क्या लिखो? IR. ओके,
Therefore बेटा W किसके बराबर है? I into I square RT. If this work done across the resistance appear as heat. See here. If this work done appears as work done or energy consumed by the battery appears as heat in the resistor. If this work done by the battery appears as heat in the conductor having resistance R, तो बेटा W के पता क्या लिखिए? W is equal to H is equal to यहाँ लिखेंगे बेटा I square RT. Therefore heat किसके बराबर लिखेंगे? heat I square RT. Thus this is nothing but this is यहाँ joules में आएगा ये, क्योंकि यूनिट है joules. अगर डिवाइड करेंगे 4/1 तो कैलोरीज में आएगा. And this is nothing, that is Joule's law of heating. Okay, very nice. Have you got this? Now I will throw light here on electric power and electric energy. Okay. See dear. देखो तमाशा. Now dear students, this topic is very easy. See dear. अब क्या है? अब दूसरा पॉइंट यहाँ है, what is electric power? बेटा इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? The rate at which work is done by the source of EMF in maintaining electric current during the electric circuit. क्या है इलेक्ट्रिक पावर? The rate, ये लिखो, the rate at which work is done by the source of EMF, is done by the source of EMF. By the source of EMF in maintaining electric current in the circuit. In maintaining electric current in the circuit. In maintaining electric current in the circuit. बेटा क्या लिखा मैंने यहाँ? What is electric power? Electric power is the rate at which work or energy is consumed by the source of EMF. Source of EMF होता है बैटरी. Source of EMF क्या होता है? बैटरी. In maintaining, बैटरी भी होती है, कभी जनरेटर भी होता है, जो सोर्स होगा इसका. यहाँ बैटरी लेते हैं यूजुअली. Source of EMF in maintaining electric current in the circuit. तो इसको क्या कहते हैं? रेट. किस रेट पर एनर्जी कंज्यूम करती है बैटरी so that it maintains current in the circuit is known as electric power. देखो बेटे क्या अगेन ये है बेटे कंडक्टर. इसको मैंने किसके साथ? पॉजिटिव ऑफ द बैटरी. और इसको बेटे किसके साथ कनेक्ट किया? यहाँ नेगेटिव ऑफ द बैटरी. ये पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ द बैटरी है, तो इसकी कुछ रेजिस्टेंस है यहाँ बेटा. देखो. ओके, वेरी नाइस. If it is having resistance, okay. If it is not having resistance, no problem. देखो बेटे, देखो समझाएंगे ये समझाएंगे बात. The work done by the battery here, this is source of EMF. The source of EMF is battery. Source of EMF क्या होता है? Source of EMF actually बेटा यहाँ क्या है? यहाँ ये बैटरी है. The work done by the source of EMF in maintaining current, in maintaining electric current during the circuit is known as electric energy. लेकिन रेट किस रेट पर करता है? That is work by time. The rate at which work is that is W by T. But work done by this in order to maintain the current in the electric circuit is known as electric power. आई बात समझ में? तो बेटा मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे. देखो बेटा, पावर लिखेंगे वर्क बाय टाइम, बिकॉज द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ EMF. आई बात समझ में? ओके, वेरी नाइस. सी डियर. लेकिन बेटे यहां देखो क्या है? देखो बेटा क्या है? सी, अगर मैं यहां लिखूंगा ऐसे, देयरफॉर पावर किसके बराबर आएगा? पावर W by T. लेकिन बेटा W इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे बेटा ऐसे, W किसके बराबर है? W, बट हियर W इज इक्वल टू Q. बट W किसके बराबर है? वर्क है QV. What is Q? Q is the charge that is flowing through this loop, through this closed circuit, and V is the potential difference of this battery. ऐसे भी कह सकते हैं. Work done in maintaining the current, that is rate at which work is done by the rate of
the rate at which work is done by the source of is known as power, but W किसके बराबर है? Work done by this is equal to QV. Q is the charge flowing and V is potential difference due to this. Potential difference that is applied across this end and this end. Here it is positive potential, here it is negative potential, this is this. And into Q, क्योंकि हमको पता है ना बेटा V होती है W by Q. याद है पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क बाय चार्ज, तो वर्क किसके बराबर आएगी? वर्क इज डन बाय द Q इनटू V. तो देयरफॉर बेटा ये किसके बराबर आएगा? पावर. पावर किसके बराबर आएगा? हम W के बदले क्या लिखेंगे? QV by T. QV by T. ओके, वेरी नाइस. सी डियर स्टूडेंट, देखो बेटा, देखो बेटा, सी डियर. Therefore here power is equal to Q, यहां लिखेंगे Q by T into V, है ना बेटा? ठीक, QV by T. ओके, बट Q by T power is, this is I. Q by T किसके बराबर है? I into V. तो पावर किसके बराबर है? It is power is also defined as the product of electric current and voltage. So this is better definition for power here for any circuit, any circuit. एनी सर्किट के लिए यहां देखो, जरूरी नहीं है कि रेजिस्टर हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए ये वैलिड है. क्या? P इज इक्वल टू IV, दैट इज पावर इज इक्वल टू, लिखो बेटा, पावर इज इक्वल टू करंट, इलेक्ट्रिक करंट इनटू वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस. लिखो, ये है एक्चुअल डेफिनेशन पावर की, एक्चुअल डेफिनेशन. लेकिन the rate at which work is done by the source of EMF in maintaining electric current in the circuit is also known as power. लेकिन पावर किसके बराबर? I into V. Okay, very nice. See here. This is for any device. But for a resistive device, but for a conductor having resistance R. इसके लिए पावर क्या बनेगा? Having some resistance R. अब ये देखो बेटे, ये जो है ये किसी भी पार्ट को, कोई भी पार्ट अगर इलेक्ट्रिक सर्किट का हो ना, ये इक्वेशन वहां वैलिड है बेटा. This equation is valid for any part of the electric circuit for any device. लेकिन कंडक्टर, but for a conductor having some resistance, ऐसे. तो बेटा ये क्या आएगा? ये इक्वेशन क्या बनेगी? पावर है बराबर V into I. तो यहां लिखेंगे बेटा, आपको पता है कि V is equal to IR. तो यहां क्या लिखेंगे? पावर किसके बराबर? यहां IR into I. बेटा किसके बराबर आएगा आपकी? बता बेटे, ये किसके बराबर आएगा? ओके, वेरी नाइस. क्लियर. तो बेटे किसके बराबर आएगा? पावर आएगा बराबर यहां I into I is I square. देखो, ये सिर्फ वैलिड है इसके लिए having some resistance, हीट, जहां हीट प्रोड्यूस होती है, इसी के लिए वैलिड है इक्वेशन, नॉट फॉर अदर इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, वेरी नाइस. आई बात समझ में? तो पावर किसके बराबर है? I स्क्वायर. और यहां और एक रिलेशन निकालेंगे पावर की, यहां I इज इक्वल टू V बाय R. तो मैं लिखूंगा यहां बेटा V ऐसे लिखो, और I के बदले क्या लिखेंगे? V बाय R. तो यहां पावर किसके बराबर आएगा? V स्क्वायर बाय R. ओके, वेरी नाइस. These two equations are valid for heating devices. But dear students, this is not valid for heating device. Valid for heating device, but this is what I can say, that is main definition for power for any device. But these two equations, power consumed, these are power consumed in the electrical circuits where there is heating effect. This is valid for any device, whether heat will get produced or not. This is the equation. बात आई समझ में? ये वैलिडिटी है इन दो रिलेशन की, I स्क्वायर R स्क्वायर बाय R. किनके लिए वैलिड है ये बेटा? किनके लिए वैलिडिटी है? यहां जहां हीट प्रोड्यूस हो, जिनकी रेजिस्टेंस हो. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ज्यादा काम आएंगे ये रिलेशन, I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाय R पावर.
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ किसके लिए बेटा, यहाँ किसके लिए डिस्कस, यहाँ रेजिस्टिव जो है ना, रेजिस्टेंस के लिए, किसी भी सर्किट के लिए। मान मैं समझाऊंगा बेटा, आपको समझाऊंगा। देखो क्या है बेटा, देखो देखो देखो, समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा आपको। अगर यहां बैटरी है, देखो बैटरी, यहां मुझे चार्ज करनी है, ये बेटा ड्राइविंग बैटरी है, देखो बैटरी चार्जर है या बैटरी है, ये बैटरी बैटरी, और बैटरी से हम यहां चार्ज करेंगे एक सेल को चार्ज करना है, ये बैटरी है, और एक सेल को यहां चार्जर को यहां चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी आप जो है ना वो डिस्चार्ज हुआ है और आप इसको चार्ज कर रहे हैं इस सेल को। तो जब इसको चार्ज करेंगे तो पावर क्या आएगा, यहां पावर तो यहां आएगा V बाई आई, इस जो इसमें क्या आएगा V बाई आई, तो यहां ये इक्वेशन नहीं, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर आर यहां वैलिड नहीं है। आई बात समझ में, यहां क्या पावर, किसके जो पावर यहां करेंगे ना सेंड, एंड दैट विल बी रिसीव्ड बाय दिस the power, the rate at which the work is done by this same amount of energy is same amount of, at the same rate energy will be stored in this device। आई बात समझ में। यहाँ बेटे ये देखो बेटे क्या है कि भी ऐसे भी होता है ना कि कोई यहाँ मान लीजिए बैटरी है, बैटरी, और बैटरी जो है ना बेटे पॉजिटिव बैटरी का और नेगेटिव है, ये मैंने मान लिया कि ये यहाँ मोटर के साथ कनेक्ट है, मोटर। तो बेटा मोटर में क्या करेगा ये पावर, ये P किसके बराबर आएगा बी आई, लेकिन यहां मोटर में नहीं लिखूंगा बेटा, ये मोटर है, देखो ये पॉजिटिव, ओके ओके, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज बेटा नेगेटिव, ये मोटर है, मोटर को चलाना है, बैटरी से चलाएंगे मोटर को, जो मोटर मैकेनिकल काम करता है ना मशीनों में बेटा, देखो बेटा क्या है, देखो ये मोटर को चलाना है, मोटर को, तो ये पावर सेंड करेगा, लेकिन यहां पावर स्टोर हो जाएगा और इसे मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी इधर, और ये चलाएगा मशीन को। लेकिन यहां क्या है, उन्होंने दे दी और यहां ट्रांसफर की, लेकिन क्या P इज इक्वल टू वी आई, यहां ये रिलेशन वैलिड नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए है, हीटिंग लॉज के लिए। कुछ आई बात समझ में। ये दो इक्वेशंस, ये P is equal to V square by R और P is equal to I square R particularly यूज करते हैं when rate of doing work is appears in the form of heat। लेकिन अगर ये appear of heat नहीं हुई तो पावर ये लिखना है, ये लिखना है जी, ओके। इन डिवाइस में जहां हीट प्रोड्यूस नहीं होता तो पावर, ये पावर कंज्यूम्ड और पावर ट्रांसफर्ड इज रिटन एज लाइक दिस। जैसे कि मैंने बताया कि सेल को चार्ज करना है या किसको ड्राइव करना है, मोटर को ड्राइव करना है, तो ये P इज इक्वल टू वी आई, द ट्रांसफर इट विल बी स्टोर्ड, द ट्रांसफर इट विल बी स्टोर्ड, बट वी आई ये नहीं, दीज इक्वेशंस एट दैट टाइम विल नॉट बी, दीज आर वैलिड फॉर रेजिस्टर्स वेयर हीट इज प्रोड्यूस्ड। ओके वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके वेरी। तो बेटा देखो आप क्या है, पावर, नाउ SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर क्या है, SI यूनिट ऑफ पावर इज बेटा क्या है, वॉट, इज वॉट। तो बेटा P इज इक्वल टू V इंटू I, देयरफॉर इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इज 1 एम्पियर, तो बेटा ये आपको पता है पावर किसकी बनाएगी, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, बेटा इसी को कहते हैं 1 वाट। सो व्हेन पावर इज सेड टू बी एज 1 वाट, बताइए डेफिनेशन दे दो। Power consumed in the circuit is said to be as 1 watt when a potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor such that the current flowing through that conductor is 1 ampere. Come, when power is said to be as 1 watt. Power consumed in an electrical circuit. Power consumed in an electrical circuit is said to be बेटा क्या, is said to be as 1 watt if we apply a potential difference of 1 volt at that time, and current flowing through the circuit will be 1 ampere, and current यहाँ लिखेंगे, and current flowing through the circuit
फ्लोइंग थ्रू द सर्किट क्या होगी इस वक्त? थ्रू द सर्किट इज वन, इज क्या बेटा? वन। करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, इज 1 एम्पियर। देखो बेटा क्या लिखा मैंने, पावर कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज सेड टू बी एज 1 watt if we apply a potential difference of 1 volt across the ends of the conductor at that time and such that current flowing at that time through the electric circuit will be 1 ampere. Okay, very nice. तो बिगर यूनिट क्या है इसका? किलोवाट है, किलोवाट, एंड दैट इज 1000 watts. दैट इज प्रैक्टिकल यूनिट, दैट इज प्रैक्टिकल यूनिट। देखो बेटा 1 किलोवाट किसके बात है? 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है बेटा, आपको पता होनी चाहिए। या 1 हार्स पावर किसकी बात है? 1 हार्स पावर वो होता है बेटा 746 वाट्स के बराबर, ये भी जबानी याद रखो। Okay, very nice. Now the next thing that I am going to discuss here is electrical energy. What is electrical energy? The rate नहीं है, the work done by the source of EMF in maintaining electric current in the circuit. Simple चीज। देखो बेटा, देखो बेटा, आपके तीसरा पॉइंट यहां इलेक्ट्रिक एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? The rate at which work is done by the rate at which work is done by the rate नहीं लिखना है, the work done लिखना है आप सीधे। the work done लिखो, the work done by the source of EMF, by the source of EMF in maintaining electric current in the circuit, in maintaining electric current in the circuit, बेटा यही बात समझ में। पावर में आता था रेट एट विच, लिखने यहां से सीधे लिखो वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड और एनर्जी कंज्यूम्ड। अगर बैटरी सप्लाई करती है लेकिन रजिस्टर में तो कंज्यूम हो रही है। Electric energy, the work done by the source of EMF in maintaining electric current in the circuit is known as electric energy. Is known as electric energy. देखो बेटा क्या है, ये बैटरी मैंने ले ली और ऐसी बेटा यहां ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया, मान लीजिए कि इसकी रेजिस्टेंस R है, यहां से कंडक्टर A टू यहां B है बेटा, और इस एंड को मैंने कनेक्ट किया नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव है, यहां करंट है। देखो बेटा क्या है, द वर्क डन बाय दिस बैटरी, द वर्क डन बाय द बैटरी इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, जितनी बेटा ये ट्रांसफर करेगी ना एनर्जी, जितनी केमिकल एनर्जी खारिज हो जाएगी इतनी ही बेटा यहां ट्रांसफर हो जाएगी एनर्जी, और जितनी यहां ट्रांसफर एनर्जी हो जाएगी इतनी कंज्यूम हो जाएगी यहां। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है सर्किट में, and that energy is known as the work. But actually कहां से स्टार्ट हो रही है? सोर्स ऑफ EMF, केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। वर्क इज डन बाय द बैटरी बिकॉज यहां नेगेटिव टू पॉजिटिव को चार्ज लेना है, तभी ये A टू B लेगा चार्ज को, ठीक है ना बेटा। तो वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बेटा वर्क किसके बराबर? वर्क लिखेंगे यहां QV, क्योंकि कितनी चार्ज लेती है यहां फ्रॉम A टू B, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस V। तो बिकॉज V होता है ना बेटा W बाई Q। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा मैं लिखूंगा यहां W इज इक्वल टू Q किसके बराबर है? IT, बिकॉज I इज इक्वल टू Q बाई T, देयरफॉर यहां डिवाइड बार करेंगे तो Q किसके बराबर आएगा? I इंटू T, आपको पता है। तो Q के बदले IT लिखेंगे और यहां V, तो W किसके बराबर आएगा? VIT, but this work done by the battery is known as energy, electric energy। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके बराबर आई बेटा? VIT के बराबर। किसके बराबर आई इलेक्ट्रिक एनर्जी? VIT। ओके, वेरी नाइस, ओके वेरी नाइस डियर। आसान टॉपिक, ये आसान टॉपिक है बेटा। देखो क्या है यहां, तो देयरफॉर A किसके बराबर लिखा मैंने? A इज इक्वल टू VIT। ओके, यहां मैं लिखूंगा बेटा, देखो क्या है यहां दिस इज वन फॉर्म, अनदर फॉर्म क्या लिखेंगे बेटे यहां, क्योंकि हमको पता है कि V इज इक्वल टू IR, V किसके बाद है? फिर हम ओम्स बात, तो देयरफॉर यहां क्या लिखेंगे?
V के बदले लिखेंगे IR इंटू IT। तो बेटे E किसके बदले आएगा, IR इंटू I, ये आएगा I स्क्वायर RT। ये एक और इक्वेशन है। ओके वेरी नाइस। एक और इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटे, एक और इक्वेशन यहां लिखेंगे। अब E तो ऐसे ही रखो, अब V को भी ऐसे ही रखो, लेकिन I को किसमें चेंज करो, आप I को अब यहां V बाय R में चेंज करो। यहां ये इसके लिए था बेटा, ये इसके लिए है यहां। तो V ऐसे ही लिखो, लेकिन I के बदले क्या लिखो, I के बदले बेटा यहां V बाय R, और अपना क्या है यहां T। तो देयरफॉर A किसके बराबर आएगा बेटा, V स्क्वायर बाय R इंटू टी। होप यू हैव गॉट दिस बेटा, इसको जबानी याद रखो। तो एक है E इक्वल टू VIT, दूसरी है E इक्वल टू I स्क्वायर RT, और तीसरी क्या है E V स्क्वायर। यहां ये बेटा V स्क्वायर है, V स्क्वायर क्या है बेटा यहां, V स्क्वायर बाय R इंटू टी। ये जबानी याद करो, क्योंकि न्यूमेरिकल करने हैं ना, न्यूमेरिकल में ही काम आएगा। देखो बेटा क्या है, ओके वेरी नाइस। अब इसका एसआई यूनिट क्या है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, देखो बेटा, SI unit of electrical energy is joule। क्या है बेटा, इस जूल है, आपको पता है ना जूल है। ओके वेरी नाइस। तो ये जूल किसके बराबर है, देखो बेटा E यहां बराबर VIT है ना। अगर V लेंगे बेटा, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I लिखेंगे 1 एम्पियर और T लिखेंगे 1 सेकेंड। तो इस यहां क्या E किसके बराबर आएगा, E आएगा बेटा बराबर यहां E इज इक्वल टू V के बदले 1 वोल्ट और बेटा I के बदले 1 एम्पियर और बेटा T के बदले 1 सेकेंड। और इसी का नाम है, क्या है इसका नाम, इसका नाम है जूल। क्या है नाम इसका, जूल, इसका नाम है जूल। ओके वेरी नाइस। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, E इज इक्वल टू E VI इंटू टी। VI होता है ना पावर बराबर PT, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहां यूनिट ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू PT लिख सकते हैं और यूनिट ऐसे भी, क्योंकि पावर का यूनिट क्या है, पावर का यूनिट ऐसे यूनिट ऐसे नहीं, पावर का यूनिट वाट होता है और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। वाट सेकंड भी क्या होता है बेटा, ये भी जूल के बराबर, यहां ऐसे। वोल्ट इंटू एम्पियर होता है वाट, वाट इंटू सेकंड, वाट सेकंड, एंड दैट इज आल्सो नोन एज जूल। आई बात समझ में, इजी है या टफ, ये वोल्ट इंटू एम्पियर होता है बराबर पावर, यहां वाट, इसको वाट भी कहेंगे। ओके, E इज इक्वल टू VI इंटू टी, VI के बदले P इंटू टी, P के बदले वाट और सेकंड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट तो जूल है। जूल किसके बराबर, वाट सेकंड के बराबर है। जूल इसके बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकंड, क्योंकि ये और ये किसके बराबर है, वाट के बराबर। ओके वेरी नाइस। तो बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंडस्ट्री में यूज होता है, ट्रेड में यूज होता है, वहां छोटा यूनिट यूज नहीं करेंगे, वहां प्रैक्टिकल यूनिट चलते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रैक्टिकल और ट्रेड यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट लिखो और कमर्शियल यूनिट लिखो, कमर्शियल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट लिखो बेटा और कमर्शियल यूनिट लिखो और बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा देखो वो किलोवाट आवर होता है, क्या होता है किलोवाट आवर, आपको वो पता है कि बेटा किसके बराबर है किलोवाट आवर। देखो लास्ट पॉइंट है, आखिरी पॉइंट इस टॉपिक का। प्रैक्टिकल यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। देखो यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो बेटा क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रैक्टिकल यूनिट और कमर्शियल यूनिट और बिगर यूनिट ऑफ ई क्या होता है। देखो बेटा वो किलोवाट इज, वो होता है किलोवाट आवर। क्या होता है, किलोवाट आवर। और ये किलोवाट आवर क्या होता है, देखो बेटा क्या होता है किलोवाट आवर, बताऊंगा। किलोवाट आवर किलोवाट किसके बाद है, 1000 वाट। किलोवाट किसके बाद है, 1000 वाट। लेकिन एक आवर किसके बाद है, 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स। तो बेटे ये किसके बाद आएगा, 100 इंटू 3600, यहां वाट सेकंड। लेकिन आपको पता है कि वाट सेकंड किसके बराबर होता है, अभी मैंने निकाला, वाट सेकंड होता है बराबर जूल के बराबर। किसके बराबर, जूल के बराबर। तो बेटे ये किसके बराबर आएगा, यहाँ 3 6 1 2 3 4 5 और 50 यहां। लेकिन वाट सेकंड के बदले क्या लिखेंगे, जूल। आई बात समझ। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, यहां 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। तो साइंटिफिक यहां जूल है बेटा, यहां देखो यहां साफ लिखेंगे,
ये क्या है बेटा, जूल, क्योंकि वॉट सेकंड इज इक्वल टू जूल। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में 3.6 इंटू 10⁻6, ठीक है ना। क्या है ये, किसकी बात है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो पता है 1 किलोवाट आवर किसकी बात है, देयरफॉर यहां लिखेंगे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज आल्सो नोन एज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसका दूसरा नाम है BOTU। What is BOTU means? BOTU means बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, क्योंकि किसमें काम आता है, ये तिजारत में काम आता है, इसीलिए इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, किलोवाट आवर। लेकिन किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रैक्टिकल यूनिट और कमर्शियल यूनिट और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट लिखो और इसको लिखो किलोवाट आवर। तो किसके बराबर है किलोवाट आवर, 3.6 into 10⁻6 जूल्स। इंपॉर्टेंट रिलेशन। एंड विद दिस आई हैव कंक्लूडेड माय टॉपिक। होप यू हैव गॉट दिस।